विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वी आर थैंकफुल टू माननीय प्रकाश जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, एंड माननीय रघुनंदन जी, जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, for initiating dialogue and discussion on various aspects of NEP. Today we are going to discuss the various provisions of NEP and marginalized section in the society. इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर टीवी कटीमनी, वाइस चांसलर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. He has also served as Vice Chancellor Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. He has also been member of NEP 2020. Above all, he is a well-known educationist. You are most welcome, sir. धन्यवाद. This interview will be moderated by Professor B.V.R. Reddy. Professor Reddy is currently professor at University School of Information and Communication Technology, Guru Gobind Singh Inprus University, New Delhi. He has also served at National Institute of Technology as faculty, NIT Kurukshetra, NIT Hamirpur. And he is also a well-known educationist. So over to you, Professor B.V.R. Reddy. I would like you to introduce sir and start the interview. नमस्कार. इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में हमें मॉडरेटर बनाया है और मैं आभार व्यक्त करता हूं और वेलकम प्रोफेसर टीवी कटीमनी जी, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में जनवरी 2014 से 2019 तक कार्यरत थे. Currently, he is the Vice Chancellor, Central Tribal University of Andhra Pradesh since 28/2020 till date. Taking no more time between introducing our honorable guest today, I know he has an illustrious career as a faculty, as a researcher, as an editor, as a writer of books, had many awards in his kitty. A lot of contribution towards education, and then translating different works from one language to another language is his foray. A well-known writer, a passionate teacher. I welcome you all over again, sir. Katimani, sir. Thank you. And we are in the midst and euphoria of the new education policy 2020. We did have a lot of education policies earlier too, but the kind of interest that has been generated in this particular National Education Policy 2020 is euphoric. Not only for the reasons that they have considered a lot of innovative ideas, incorporated them into the system, but the real challenge, as we all see as educators, researchers, and administrators, worthy people like you, that the real challenge before us is the implementation of this strategy, and how do we take this forward so that whatever lapses that happened in our earlier education policies or the pitfalls that have happened, are we learning lessons from those particular aspects that were missing, or there were several links that were not in sync with each other, they were broken. In that light, personally, after having gone through the complete um, document, and not only the document, but the draft that was circulated, I personally feel and elated that almost 80% of what I kept on dreaming for the last 10 years has been a reality. In that light, I think today's discussion with
a wonderful personality, Dr. Katimani ji, will throw light, and probably I'll enrich myself in this process as to how my seniors are looking forward to in implementing such a beautiful policy as I perceive it for myself. And in that light, I would try and ask you some questions, sir, which will be Right, surely. directed, uh, Right. which will be directed in a way that your ideas will be uh, given to a broad audience. The intent is that your ideas of how it is to be implemented, not only at the university you're serving, so, but how do we translate this euphoria into a working machine? And people like you give us that kind of a direction so that the same, if not in the same format, can be implemented at all other universities, including IITs and IIMs in this country. And we all dream to see a bright future for our children, not only in giving them right education, but also ensuring that whatever promises we are making for ourselves today, they should be a reality within the next 20 years is what I look forward to. Particularly having gone through your CV is so impressive, sir. I would like to focus and concentrate on those topics of NEP, which probably is revolving in your mind and you're already making plans to implement the same in a beautiful university which you're conceiving or going to build a wonderful tribal university for Andhra Pradesh, for the nation and all. And then I know you have been a champion and a leader in fighting for the socially disadvantaged groups. And you have several plans in that direction. Sir, let me ask you the first question in this direction. How do Ji. you think the current National Education Policy 2020 can transform the Indian educational system? धन्यवाद रेड्डी साहब, बहुत अच्छा सवाल है। यस, किसी देश को बदलना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को बदलो, जी वहां की सोचने की पद्धति को बदलो, जी लोगों को बता दो कि जो हमारे पास है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, ये क्या आज के सवालों को, चैलेंजेस को क्या वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है। वहन कर रहा है, चलो लेट अस कंटिन्यू। वहन नहीं कर रहा है तो इसको हमको आधुनिक संदर्भ में जो आज का समय चाहता है, आज के सवाल चाहते हैं, आज का एनवायरनमेंट जो चाहता है, आज फॉर एग्जांपल वाटर इंजीनियरिंग, water engineering is not means it is not only an issue to meet out the supply of water. Water engineering is Himalayan engineering also, sea engineering also, river engineering also, pokhar lake engineering also, तालाब engineering also. पानी में रहने वाले जलचरों को लेकर भी हमको सोचना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, अभी आज की आवश्यकता है, जमीन पर जो पानी है उसको ही लेकर नहीं, जो आकाश से पानी गिरता है उसको कैसे बचाया जा सके। नॉट ओनली उसको कैसे बचाया जा सके, उसको कैसे रीयूज कर सके। यूज करने के बाद जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकलिंग कैसे कराया जाए। पहले पानी पीने के लिए उपयोग होगा, नहाने के लिए उपयोग होगा, वॉशरूम के लिए होगा। अब जो गटर में जाता है उसको जाने नहीं देना है, उसको रिसाइकलिंग करना है। रिसाइकलिंग करने के बाद फ्लश करना है तो फ्लश में डालो। गार्डनिंग स्पेस है, पिछवाड़े में गार्डन है तो उसमें यूज करो। तो ये जो नई
आवश्यकताएं और नई तांत्रिक शक्ति हमारे सामने है, तो पूरा यथोस अभ्यास का सोचने की पूरी पद्धति अभी बदल गई है। फिर भी आज हम अपने टेक्स्ट बुक में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट बोलने से काम नहीं चलेगा। हमको कुछ और भारतीय शब्द को जोड़ना है। भारतीय एथोस को सामने ना, भारतीय समाज को सामने लाना है, को कमला को लाना है, कमल को लाना है। तो इस तरह कहने से गाय को लाना है, बी बेंगलुरु को नहीं, मैं तो कहूंगा ये भैंस है, भैंस को लाना है। क्योंकि हम गाय को लाएंगे, भैंस को लाएंगे, बैल को लाएंगे, तो हमारे बच्चे जो गाय को देखते आए हैं, हमारे बच्चे जो कमल को देखते आए हैं, जो कमला को देखते आए हैं, जो पानी को देखते आए हैं, नदी को देखते आए हैं, कौवे को देखते आए हैं, बहुत जल्दी इसको समझ पाएंगे। जो बच्चे पानी को समझ पाएंगे वो दूध के बारे में भी सोचेंगे। ये बच्चे जो भारतीय शिक्षा पाएंगे, समाज की शिक्षा पाएंगे, दूध गाय देती है वो समझेंगे, वो भैंस देती है समझेंगे, ये मशीन देती है कभी नहीं समझेंगे। दूध देने वाला अंकल पानी दूध देगा ये नहीं समझेंगे। ये जो हमको लगता है ये छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जो समझिए कि इसकी क्या जरूरत है। हमको ग्लोबल डायस पर जाने के पहले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के पहले गांव के स्तर को समझना बहुत जरूरी है। बदनसीबी भी ये है, हमने भारत को, हमारे अपने देश को हमने शहरों का देश बना दिया। हालांकि ये भारत कभी शहरों का देश नहीं है, ये दिल्ली का देश नहीं है, ये अहमदाबाद का देश नहीं है, ये बेंगलुरु का देश नहीं है, ये गांवों का देश रहा है, ये गांवों का देश है। कहा जाता है भगवान ने गांवों को बनाया और आदमी ने शहर को बनाया। बिल्कुल सही। भगवान ने जो शहर को, गांव को बनाया, भगवान ने सबकी देखरेख की, सबकी आवश्यकता देखी, आशा देखी, लेकिन दुराशा को भगवान ने कहा कि तुम्हारी दुराशा को हम देख नहीं पाएंगे। हैव मोर, और ज्यादा ले लो, ये हमारा, जितना कम ले सको उतना कम ले लो। ये भारतीय धर्म की धार्मिक परंपरा है, हमारे समाज की परंपरा है, हमारे नानी दादी की परंपरा है, हमारे पिताजी की परंपरा है, हमारे भगवान की परंपरा है। हम भूल गए, हम मोर की बात करने लगे, ये गलत है। और हमारी शिक्षा को इसलिए बदलनी है। हमारी शिक्षा पद्धति को केवल बदलनी नहीं है, हमारे महान शिक्षकों को बदलना है। डॉक्टर रेड्डी को बदलना है, कट्टीमनी को बदलना है। केवल इतना ही बदलना नहीं है, हमको मालूम होना चाहिए। मैं एज ए टीचर, मैं अपने आप को मानता हूं, हालांकि भले ही मैं सैलरी लेता हूं, पगार लेता हूं, लेकिन शिक्षक पगार के लिए नहीं है, शिक्षक भविष्य को बनाने के लिए। शिक्षक की जिम्मेदारी देश की भविष्य को बनाना है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सेंटर में विद्यार्थी है, छात्र है। और एक सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, शिक्षक है। जैसे शिक्षा नीति को, हमारी शिक्षा पद्धति को, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक को बदलना है, हमारे शिक्षक की सोचने की पद्धति को बदलना है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए बदलना है, हमारे शिक्षक को, हमारे शिक्षक की, हम लोगों की जो जिम्मेदारी है जी, मुझे जो शिक्षक, जिस शिक्षक ने सिखाई, आपको जिस शिक्षक ने सिखाई, उनको बहुत कम पगार मिलता था।
लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी हमारे गांव में, लेकिन मेरे शिक्षक अपने पैसे से कंदील, लालटेन जलाकर हम लोगों को पढ़ाते थे। जी हम एक पैसा नहीं देते थे, बस कुएं से पानी उठाकर उनका बर्तन में साफ करते थे, पानी भर कर रखते थे, लालटेन साफ करके रखते थे। इससे ही हमारे शिक्षक बहुत खुश होते। या बैकग्राउंड से कोई आपका वेजिटेबल्स लाके दे दिया है। जी जी जी। देते हैं। इसीलिए हम्म, शिक्षा को जी समाजोन्मुखी बनाना, जी शिक्षा को विद्यार्थी छात्र के लिए पैसा कमाने का रास्ता केवल नहीं बनाना है, जीवन जीने की कला का रास्ता बनाना है। पैसे कमाना भी उसमें एक अंश है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही धन कहा। भी हमको चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, अन्न चाहिए, घर चाहिए, छत चाहिए, सहारा चाहिए। इन सब से बढ़कर एक समझदारी चाहिए, बिल्कुल एक विजडम चाहिए। एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विजडम की बात करती है, देश की बात करती है, गरीबों की बात करती है, माँ बाप की रक्षा की बात करती है, परवरिश की बच्चों की परवरिश की बात तो सब करते हैं, लेकिन हम बच्चे अपने माँ बाप की परवरिश की भी हमको सोचनी चाहिए। केवल मेरे माँ बाप की परवरिश की बात नहीं, आपके माँ बाप की, जो जो हमारे आस पड़ोस में है उनके माँ बाप की भी हमको सोचनी पड़ेगी। गाय की भी सोचनी पड़ेगी, भैंस की भी सोचनी पड़ेगी, बैल की भी सोचनी पड़ेगी, किसानों की सोचनी पड़ेगी। ये सोच अब तक की जो शिक्षा है उससे हमको नहीं मिलती। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा समग्र विकास बच्चों का, हम्म, बच्चों का समग्र विकास शिक्षा से होनी चाहिए। बिल्कुल जब बच्चों का समग्र विकास दैहिक, मानसिक और काया वाचा मनसा हमारा विकास होगा, हम देश के विकास के बारे में यही सोचेंगे। केवल हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, औरों के बारे में सोचेंगे। अब देखिए, जनजातीय समूह में एक परंपरा है, वो संग्रह कभी नहीं करते, जी संग्रह कभी नहीं करते। वो कहते हैं संग्रह करने की जरूरत नहीं। इवन पीने के पानी की संग्रह भी आदिवासी जनजातीय लोग, ट्राइब्स नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं पानी बहता है, गंगा मैया बहती है, नर्मदा मैया बहती है, आज पानी देती है तो कल भी हमको पानी देगी, जो विश्वास। मुझे संग्रह नहीं करना है। बिल्कुल ये भारतीय पद्धति है, भारतीय व्यवस्था है, भारतीय सोचने की पद्धति है, जिसको हमारे बच्चों को दोबारा याद दिलाना हम लोग जो शिक्षक है, ये हमारी जिम्मेदारी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू, जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम है, इट इज मोर मशीन सेंट्रिक। जी पूरा जो जितनी भी पढ़ाई हम करते हैं बच्चों के साथ, जो भी पढ़ाते हैं, सो क्लियर स्टेटमेंट इज वी हैव टू मूव फ्रॉम मशीन सेंट्रिक लर्निंग टू ह्यूमन सेंट्रिक लर्निंग। दिस जी इज द एसेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। और जैसे आपसे पहले भी एक बार चर्चा में बात की थी, जो हमारी पहली नीति थी एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें इंडिपेंडेंस के टाइम में बोला था कि होलिस्टिक एजुकेशन यानी मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए। जी दूसरी बात कही थी कि स्किल्स उतना दे दो बच्चे को ताकि वो अपना ब्रेड, रोजी रोटी कर सकते। रोजी रोटी कमा सके। तीसरा ये उसमें दिया गया था कि इसको उद्योगपति बनने के लक्षण उसमें डालो, एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वो 10 लोगों को नौकरी दे सके। अगर इतनी अच्छी बातें हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी में किया गया था, तो 70 साल में ऐसा क्या हो गया? एंड how do you think that this education policy will be a game changer in comparison to the earlier education policies? ये गेम चेंजर इसलिए है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी नई तालीम के एक धार्मिक अहम बुनियादी पर खड़ी है। जी नॉलेज एंड वर्क नॉलेज शुड गो टुगेदर। यस बुद्धि
बुद्धिमत्ता और काम साथ जाना चाहिए। जी जैसे आपने अब 73 74 इयर्स हो गए आजादी प्राप्त करने के बाद, जी फिर भी जो जो अंग्रेजों का हैंगओवर है उससे हम बाहर नहीं आए। एग्जैक्टली। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि जिनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है वो बहुत बड़ा बुद्धिमान कल्चर्ड आदमी है। और सूट बूट पहनना भी है, हाँ, सूट भी हाँ, पहनना है। हाँ, हाँ। जी वो वास्तव में है ही नहीं। जी कोई भी अंग्रेजी भाषा की क्या कल्चर है, अंग्रेजी भाषा की हमारी कल्चर के साथ क्या संबंध है? कोई नहीं। क्यों हम गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं? जी और अंग्रेजी स्कूल में लाखों रुपए का डोनेशन, एंट्री फी क्यों हो रहा है? क्यों कन्नड़ भाषा की स्कूल अच्छी नहीं चल रही है? तेलुगु भाषा की स्कूल अच्छी क्यों नहीं, मलयालम स्कूल अच्छी क्यों नहीं चल रही है? हिंदी स्कूल अच्छी क्यों नहीं चल रही है? इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि हमारी गुलामियत अभी खत्म नहीं हुई है। जी बहुत अभी भी सही हम कहा। मानसिक गुलामियत में हम पीड़ित हैं। अरे मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, मैं बड़ा फक्र करता हूँ, गर्व करता हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी को मैं मातृभाषा जैसी समझता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ और अपनाया है, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है। और हिंदी, अब देखिए मैं मलयाली लोगों से बात नहीं कर सकता, जी मुझे मलयाली नहीं आती, उनको कन्नड़ नहीं आती, लेकिन हम दोनों हिंदी के माध्यम से बात करते हैं। बहुत सही कहा। राइट। ये जो भारत को, अब देखिए संस्कृत फॉर एग्जांपल, मेरी मातृभाषा कन्नड़ क्यों ना हो, 60% शब्द मेरी मातृभाषा के संस्कृत के, जी बिल्कुल है, किसी भी 100%। भारतीय भाषाओं के संस्कृत के। बिल्कुल। मैं एक उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर को, वो हानरस खोसा हम उर्दू यूनिवर्सिटी वाले हैदराबाद में दे रहे थे, उनको एस्कॉर्ट कर रहा था मैं। जी तो उन्होंने पूछा, डीन साहब, मैं डीन था उस समय, डीन साहब आपके विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग है? मैंने कहा कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ, जी आपके विश्वविद्यालय में, मतलब उर्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं है, तो उर्दू खत्म हो गई। मैंने कहा कि आपका क्या जस्टिफिकेशन? उन्होंने कहा संस्कृत का जो व्याकरण है पूरा उर्दू का व्याकरण है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई वाज स्टन्ड। True. और मेरी आंखें खुली, जी मेरी आंखें खुली। इस तरह की चीजें हमारे देश में हैं। हम दुनिया की सभी चीज जानते हैं, लेकिन जी अपने गांव के बारे में नहीं जानते। राइट। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बारे में हम बहुत पूरा विवरण देते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में बहुत कम जानकारियां हमारे पास है, अपने बहनों के बारे में बहुत कम जानकारियां। जी तो मैं अक्सर एनईपी में ये चर्चा होती रही कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमको जरूरी है, जी लेकिन अब जमीनी स्तर पर भी हमको शिक्षा जरूरत है, क्योंकि हमारे पोखरों को बचाकर रखना है, जी हमारे जल स्रोतों को बचाकर रखना है, शुद्ध रखना है, जी हमारे जानवरों को, हमारी गाय को, भैंस को मजबूत रखना है, क्योंकि हमको गोबर चाहिए जमीन को उर्वर बनाने के लिए। हमारे बच्चों को दूध चाहिए, हमको भी दूध चाहिए, दही चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, छाछ चाहिए, मट्ठा चाहिए। जी ये हमारे जानवरों को बचाकर रखने से, वाटर बॉडीज को बचाकर रखने से हमको छाछ मिलेगा, मट्ठा मिलेगा। पानी खत्म, जानवर खत्म, गाय खत्म, भैंस खत्म, और जी हमको मट्ठा कहाँ मिलेगा? जी अब सर, ये हाँ, जो आपने कहा है कि ये जो मानसिकता है उसमें बदलाव लानी चाहिए, और ये गुलामी की जो मानसिकता की बात आपने की। दूसरा आपने कहा, मेरी बात ये है कि कितना भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल द वे इट इज बीन कंसीव्ड। एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कंसीव किया गया, क्या हम इसको ट्रांसलेट करते वक्त, ये तो एक ह्यूज मैंडेट है, और इसमें एक्सेप्टेंस जो है, मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से आप और हम इतने अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं,
सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। तो कैसे इस चीज को चेंज लाने के लिए क्या करना होगा, ताकि जो आपकी सोच है, और हमारे हिस्ट्री भी बहुत डिस्टॉर्टेड है, इसको भी हम कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने जो बताया हमें वो वाला हम अभी भी चला रहे हैं या सोच रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहे हैं। I think we should salute those people to have given such kind of an imprint on us. How do we change this? We have crossed 70 years, now we have to change. तो आपके हिसाब से चेंज लाने के लिए, इसको एक चेन रिएक्शन लाने के लिए और इस चीजों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कैसे आप मार्गदर्शन करेंगे? कैसे, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोड मैप? ये आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन, आपकी शुरुआती बातों में कहा इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी टफ। यस सर। मैं कहता हूं इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी। ओके। क्योंकि किसी भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति कभी खड़े नहीं होते जी। वो हम जैसे, आप जैसे वाइस चांसलर प्रोफेसर को छोड़कर अपना काम करते जी। हमारे देश में प्रधानमंत्री खड़े हो गए हैं, हमारे कर्मठ शिक्षा मंत्री खड़े हो गए हैं, हमारे राष्ट्रपति जी गवर्नरों से बात की जी। ये अब देखिए, उसके बाद गवर्नर लोग अपने अपने राज्य जाकर वाइस चांसलर से बात की, हम जैसे लोगों से बात की। अरुणाचल के गवर्नर साहब से हमारी मेरी इंटरेक्शन हुआ। मतलब वो लोग इतने सीरियस, पूरा तमाम देश, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, एग्जीक्यूटिव्स, वाइस चांसलर्स, एकेडमिक लीडर्स, एजुकेशन एकेडमिक लीडर्स, टीचर्स क्यों इतना सीरियस हैं? इसलिए कि हम सबको मालूम हो गया है अब तक हमने जो शिक्षा पाई है ये निरर्थक हुआ है। सही कहा। हमने डिग्री पाई, जी जी, डिग्री हमने कोट पाया, हमने पैंट पाया, हमने टाई पाया, हमने अंग्रेजी पाई, लेकिन भारत खो गए। भारत खो गए, अपने गांव खो गए, माँ बाप खो गए, मातृभाषा खो गए, हमारे जल स्रोत हम खो गए, जी जी, हमारा जंगल खत्म हो गया। इसीलिए दोबारा जल स्रोतों को रिजुविनेट करना है तो मातृभाषा को रिजुविनेट करना है। जी, मातृभाषा के माध्यम से हम शिक्षा देंगे कम से कम 6वीं कक्षा तक। मैं कहता हूं एज ए टीचर, हमारे इंटरनेशनल स्तर के रिसर्च पेपर्स अपनी मातृभाषा में लिखनी चाहिए। जी, बिल्कुल लिखनी चाहिए, जिससे हमारी सोच की जो ओरिजिनलिटी है वो आ जाएगी। और आप बोलेंगे, अरे सर फिर वो वर्ल्ड क्लास कैसे पहुंचेगा? अरे ट्रांसलेशन कराओ ना, आप जिस भाषा में कराना चाहते हो उसमें कराओ। जी, जर्मनी में कराओ, फ्रेंच में कराओ, अंग्रेजी में कराइए। ट्रांसलेशन, इसलिए एनईपी 2020 ने कहा ट्रांसलेशन को बड़े स्तर पर हमको राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनानी है। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CIIL जो मैसूर में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, उसको वो ट्रांसलेशन यूनिवर्सिटी के रूप में बदलने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एक कमेटी बनाई गई जी। बहुत बड़े विद्वानों को रखा है। अब इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन देश में शुरू हो गया जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो नाम से शिक्षा विभाग जाना जाता था अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। ये तो है, हुआ है। मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। देखिए सर, मातृभाषा में शिक्षा हम देंगे। देखिए मेरी शिक्षा 1 to फाइनल BA जी, BA फाइनल ईयर तक मेरी शिक्षा कन्नड़ मातृभाषा में हुई है। आप बताइए मेरी हिंदी अच्छी है या नहीं है? बहुत अच्छी है। अंग्रेजी अच्छी है नहीं है? वो काम चलाने के लिए अंग्रेजी की जरूरत है, भारत में सब लोग जानते हैं। जी जी, जी। लेकिन अपने आयुर्वेद को हमको क्यों अंग्रेजी में सीखना है? जी। आयुर्वेद को सीखना है तो संस्कृत में सीखना है, क्योंकि संस्कृत में आयुर्वेद का भंडार है। बिल्कुल है, आयुर्वेद को सीखना है तो गोंडी में सीखना है। ट्राइब्स की जो गोंड जनजाति की भाषा है, गोंडी में सीखा है। सेंट्रल
इंडिया में जो बहुत बड़ी संख्या में बोली जाती है, बैगानी में सीखना है। बैगा जनजाति की भाषा है, जी उसमें इट इज ए ट्रेजर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जी 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 ट्रेजर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। हम जी इसको भूल गए, हम अपनी बैगानी को भूल गए, अपनी संस्कृत को भूल गए, हिंदी को भूल गए। अंग्रेजी के माध्यम से हम आयुर्वेद को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। हम अपने भारतीय आर्य वैद्य पद्धति के बारे में अंग्रेजी में लिख कर कहते हैं हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। ये जी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ये सोच भारत के खिलाफ है। हमको जी पहले ये सोचना है किस भाषा में मैं सोचता हूँ। मैं अपनी मातृभाषा में सोचता हूँ, मातृबोली में सोचता हूँ, तो मातृबोली में शिक्षा देनी चाहिए। जी पूरा तमाम देश अपने आप आ जाएगा। और अब वास्तव में रेड्डी साहब, हम सोचते हैं ना कि जी हमको ये कमी है, वो कमी है। मैं कहता हूँ हमारे पास कमी की कोई कमी नहीं है। जी अभी भी भारत की धरती रत्न गर्भा वसुंधरा। बिल्कुल है 100%। अब झारखंड में जी देश के अति अमूल्य जो मेटल्स हैं झारखंड में, जी जो उसके मालिक है वो गरीब है। ये विडंबना है। आंध्रा में भी यही स्थिति है। जी जो फॉरेस्ट को, जंगल को हिफाजत करके रखने वाले लोग हैं, जी जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो जी गरीब हैं। जी लेकिन अपनी गरीबी में भी वो, क्या उनको बीपी हुआ है, क्या उनको शुगर हुआ है, क्या जी उनको हेपेटाइटिस भी हुआ है? नहीं है। इतनी गरीबी में भी, इतनी कम स्रोतों, जो भी व्यवस्था में स्रोत भी है। वो सुखी क्यों है? जी इसलिए सुखी है, सोचने की शक्ति भारतीय पद्धति की उल्टी है, भारतीयता है। जी वो हैवमोर पर विश्वास नहीं करते, जो है यस उसमें सुखी रहो, उसकी। राइट। सो दे प्रैक्टिस नीड नॉट ग्रीड। यस, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर कि हमें जो प्रेरणा मिल रही है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहा है, शिक्षकों के भी मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात आपने कही है कि हमारा टॉप मैनेजमेंट कह लीजिए, या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द एजुकेशन मिनिस्टर कंसर्न, they are so serious about this. I think that is the game changer. Since it has come from the top, I was trying to give you a twist into the question, knowing fully well that yes, this is the time. योगी जहां मोदी जी हैं, इट इज संभव है, ये बात आपने बहुत अच्छे से कहा, ये हो रहा है। एंड आपको एक छोटी सी बात कहूँ, स्किल इंडिया का जो मूवमेंट 2014 जैसे आए, सबसे पहले उन्होंने स्किल इंडिया की बात की थी, और उससे पहले ही मैं ये सोच के बैठा था, लेकिन क्या है कि सिस्टम डिड नॉट अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड। द टाइम व्हेन ही गेव दिस स्लोगन, वी स्टार्टेड वर्किंग। तो हमारा यूनिवर्सिटी में ये जो स्किल एजुकेशन को लेके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और काफी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम कर रहे हैं। सो जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन से सर, कमिंग नेक्स्ट टू आपका पूरा जितना भी योगदान है, जहां जहां आपने काम किया है, you have been a champion of socially disadvantaged groups. What steps are taken in NEP 2020 for socially disadvantaged groups? इनके लिए आपको क्या लगता है कि NEP में क्या क्या चीजें की गई है, और आपके मन में क्या है कि कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है? एक नया सुंदर यूनिवर्सिटी आप बनाने जा रहे हैं आने वाले 5 साल में, आप इसको कैसे, आई थिंक इट इज अ वंडरफुल सिचुएशन वेयर यू आर सिटिंग इन, यू गॉट द न्यू पॉलिसी विद यू, एंड you are the vice chancellor of a new tribal university. How do you translate this into your university? रेड्डी साहब, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी क्योंकि कुछ लोग प्रचार अपप्रचार में लगे हुए हैं। मतलब नीति को, रिपोर्ट को पूरे पढ़े बगैर जी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में SC/ST को लेकर कोई बात नहीं कही गई, जी माइनॉरिटीज को लेकर कोई बात नहीं कही गई है, जी वुमेन को लेकर कोई बात नहीं कही है। मैं तो कह रहा हूँ केवल वुमेन की ही बात नहीं की गई है,
ट्रांसजेंडर की भी बात एनईपी में की गई। बहुत अच्छी बात है जी। नॉट ओनली दैट, जो शिक्षा पाने वाले बच्चों में कई तरह की कमियां होती है, उनको लेकर बात की गई। चैलेंज्ड चिल्ड्रन, यस। चैलेंज्ड बच्चों के लिए चैलेंज्ड जो लर्निंग सिस्टम है उनको लेकर बात की गई है। उनको कैसे हमको सशक्त बनाना होगा, कैसे उनको हमको, अब क्योंकि वो भी भारत के, हमारे देश की प्रगति में वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कड़ी है जी चेन के, इंपॉर्टेंट एक चेन है, उसको हमको नहीं छोड़ना है। एनईपी 2020 ने सोचा है जी कि स्कॉलरशिप की बात एनईपी 2020 में की गई है, फेलोशिप की बात की गई है। इतना ही नहीं, जो 150 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है देश में, मतलब वो शिक्षा में, इंडस्ट्रीज में जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनको लेकर एनईपी में कहा गया है कि वहाँ यूनिवर्सिटीज की स्थापना वहाँ होनी चाहिए, स्कूल की स्थापना वहाँ होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज उसमें खुलनी चाहिए, घर के आसपास स्कूल होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, मातृभाषा में टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन टेक्स्ट बुक्स में क्या होना चाहिए, जी उनके टेक्स्ट बुक्स में आसपास के, उसमें हैबिटेट की बात की गई है। जी हैबिटेट को उसमें रखना है, हैबिटेट को इंट्रोड्यूस करना है, परिचित करना है, जिससे ये बच्चे शिक्षा के प्रति बहुत जल्दी विकसित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझिए मध्य प्रदेश के जो मध्य भाग में बैगा ट्राइब है, जी बैगा ट्राइब है, बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जी उनके स्कूल्स जब हम देखने जाएंगे, वहां बैगानी में उनको टेक्स्ट बुक मिलती है, बैगानी में टेक्स्ट बुक मिलती है, पेड़ पौधों के बारे में वहां विवरण है, इंडिजिनस सीड सिस्टम के बारे में वहां विवरण है, नर्मदा मैया के बारे में वहां विवरण है। तो वो बच्चे जरूर आकर्षित होंगे, वो सोचेंगे ये तो हमारे घर की बात इसमें की गई है। शिक्षा के प्रति बच्चों को आकर्षित कराने का ये तरीका है कि आप उनके आसपास के बातों को करो। अब देखिए, हमारे बड़े बड़े बी स्कूल्स है, बिजनेस स्कूल्स है, वो दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों की बात करते हैं, वहां उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को बोलते हैं आपको फोर्ड बनना है, आपको गूगल के मालिक बनना है। मैं कहता हूं वो तो छोड़ो, गूगल के मालिक हम बाद में बनेंगे, पहले जो हमारे आसपास जो सक्सेस स्टोरीज है ना, हिंदी क्षेत्र में सक्सेस स्टोरीज हैं, तमिल क्षेत्र में सक्सेस स्टोरीज हैं, तेलुगु क्षेत्र में सक्सेस स्टोरीज है, कन्नड़ क्षेत्र में सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको हम क्यों नहीं बताते? एक, अब देखिए, फाउंड्री जो साइंस है, ये भारत में, दुनिया में पहले भारत में आदिवासियों से शुरू हुआ, छोटे नागपुर एरिया से, जिसको देखकर महर्षि विवेकानंद जी अमेरिका में गए और वहां एक युवक उनसे मिले, वो सन्यास दीक्षा के लिए संत श्री से प्रार्थना की, तो वो कहते कि तुमको संत नहीं बनना है, आप जाओ बिहार के उस भाग में जाओ जहां आयरन ओर बहुत है, वहां एक मिल आप शुरू करो, फैक्ट्री शुरू करो। विवेकानंद जी को जब उन्होंने भारत यात्रा की, पैदल यात्रा की, उन्होंने वो सब देखा जी, और जिसके कारण से देश का पहला आयरन ओर मिल, स्टील मिल वहां बना, जिसको टाटा नगर, जमशेद नगर के रूप में हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जमशेद नगर अपने आप नहीं बना, वो आकाश से नहीं टूटा, वो बना वहां की जो आदिवासियों की स्किल है, स्किल थी, स्किल है, उसको देखकर विवेकानंद जी ने टाटा जी को बताया। ये किस टेक्स्ट बुक में, किस इतिहास में ये सब लिखा हुआ है? जी नहीं है, हमको लिखा है। आपने जी। कहा ना इतिहास की बात, इतिहास गलत लिखा हुआ है। इतिहास यदि ठीक लिखा होता जी, तो भारत
का स्वरूप, हमारे देश का स्वरूप बदल जाता। हमारे यहाँ शिक्षा की दुर्गति जो हुई है, हर क्षेत्र, हर स्टेज पर हर चीज को अलग ढंग से बताने की कोशिश की गई है। शिक्षा नीति 2020 ने कहा है हमको अपने इतिहास के बारे में भारतीय होकर सोचना है और लिखना है। हमारी भारत की जो भी समस्याएं हैं, इसका मूल कारण अन्य लोग नहीं है, हमारी सोचने की पद्धति है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास दवा दारू की बहुत अद्भुत पद्धति है। बिल्कुल है। भारतीय, हमारे घर में, हमारी चौकी में जो खाना बनता है वो दवा है। जिनको हमारे 4 लोग हम घर में हैं, किसी को बुखार हुआ है, उनको क्या खाना देना है माँ को मालूम है जी। जो गर्मी प्रकृति के हैं उनको क्या खाना देना है माँ को मालूम है। जो ठंड कफ प्रकृति के हैं उनको क्या खाना देना है माँ को मालूम है। इस माँ को जो सर्टिफिकेट नहीं है, मेरी माँ के पास सर्टिफिकेट नहीं थी, लेकिन वो अनपढ़ कभी नहीं थी। जी जी जी। ये सर्टिफिकेट को हमने समझ लिया कि वो एजुकेशन है, वो गलत है। सर्टिफिकेट एजुकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट जानकारी नहीं है, सर्टिफिकेट बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता है, कई लोगों के पास है, जानकारी है, विजडम है, वो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। हम समझते हैं कि वो साइंटिस्ट नहीं है। हम समझते हैं जो FRCS है वो साइंटिस्ट है जी। अब NEP कहती है नहीं, दोनों साइंटिस्ट हैं। एक जो सर्टिफिकेट होल्डर है वो ट्रेन्ड साइंटिस्ट है जी। जो नॉन सर्टिफिकेट होल्डर है वो नेचुरल साइंटिस्ट है जी। वो प्रकृति दत्त विज्ञानी है। आप प्रयोगालय दत्त विज्ञानी है जो आप सर्टिफिकेट होल्डर है। आप दोनों को शेक हैंड करके अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को शेयर करना है। जी। शेयर करके नए भारत की निर्माण करने की कोशिश कर रही है। मतलब जो अपने आप को हम समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं जी। हम समझते हैं कि वो जो गांव वाला जो बैगा वो जो दवा देने वाला है, ओझा है, वो अनपढ़ है। मैं कहता हूं कि अनपढ़ नहीं है, उनके पास एक विशेष ज्ञान है जी। आप दोनों ज्ञानी बैठकर, आप जो अंग्रेजी जानते हैं, आप जो केमिकल जानते हैं, जो केमिस्ट्री जानते हैं, पेटेंट लगाने की बात आपको, आपके पास जो ज्ञान है, आप इस विज्ञानी को, गांव के विज्ञानी को, जंगल के विज्ञानी को अपने लैब में बुलाओ, आप दोनों ज्वाइंट वेंचर करो, बैठकर आप रिसर्च करो और आप जब पेटेंट फाइल करेंगे और आप पेटेंट फाइल होगा, आप दोनों के नाम पर होगा, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप दोनों के होंगे। ये कैसे, ये सब कहां से आया? ये NEP 2020 से आया जी। NEP 2020 देश की हर प्रजा को एक अत्यमूल्य व्यक्ति मानता है। वो सर्टिफिकेट होल्डर हो या नॉन सर्टिफिकेट होल्डर हो, वो ट्रांसजेंडर हो या महिला हो या पुरुष हो, वो आदिवासी हो या उच्च स्तर का हो, वो समान है शिक्षा के सामने, अपनी बुद्धिमत्ता के सामने। स्किल NEP 2020 के लिए बहुत मायना रखता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कौशल जी जी। और इस कौशल को पहली बार भारतीय शिक्षा ने आइडेंटिफाई किया, इसीलिए NEP 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इनसे एक लिंक्ड सवाल है जो आपने कहा है कि मुझे दो तीन बिंदुओं में ये बताइए कि आप सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में होलिस्टिक पर्सनालिटी को लेके क्या क्या आपने स्टेप्स उठाए हैं। अगेन सेकंड क्वेश्चन टू दैट इज स्किलिंग आपने बहुत इंपॉर्टेंस माना है और स्किलिंग becomes a very important component in bringing what you call livelihood or good education or good enterprise among the tribal children. So what are the steps taken at Central Tribal University you are heading as the Vice Chancellor?
आपको बता दूं, जिस तेलुगु प्रदेश में आकर मैं काम कर रहा हूं, जी मैंने 10 स्किल्स को इधर आइडेंटिफाई किया। जी उसमें एक स्किल है बोब्बिली वीणा बनाने की कला। जी हम्म, ये दो तरह के लकड़ी को म्यूजिकल आधार बनाकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, जाक फ्रूट की लकड़ी और जी जी रोजवुड लकड़ी के जी आधार पर ये वीणा बनाती है। बहुत सुंदर वीणा बनाते हैं। जी ये वीणा बनाने वालों की संख्या एक समय में हजारों में थी। जी अब मेरे पास डाटा है, देर आर ओनली 35 फैमिली बचे हुए हैं, 35 फैमिली बची हुई। जी सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक सेंटर बनाकर उनको दी है। ओके अभी अगेन एज वाइस रीस्किलिंग। चांसलर इसका अध्ययन करके ओके मैंने सोचा इस पर एक सर्टिफिकेट एंड एक डिप्लोमा कोर्स हम अपने विश्वविद्यालय में शुरू करेंगे, वेरी नाइस, वीणा बनाने की स्किल। वेरी गुड सर। इट और विल हमारे एडवाइजर्स ने पूछा शिक्षक कौन आएंगे, जी इतने क्वालिफाइड शिक्षक कहाँ मिलेंगे। जी मैंने कहा इससे भी ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स जो कारपेंटर्स बनाते आए हैं ट्रेडिशनली, वो हमारे शिक्षक हैं, रिसोर्सेस। स्किल्ड पीपल ही चाहिए ना उसको पढ़ाने के लिए। येटिकोप्पका का थ्योरेटिकल, बोम्मोलू आप जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ येटिकोप्पा सर, का बोम्मोलू एटिकोप्पा का। वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल वो खेलकूद के सामान बनाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में मैंगो जेली बनती है। इस प्रदेश में बिल्कुल बनता है आम बड़े पैमाने पर यहाँ पैदा होता है जलेबी। और वो सीजनल होने के कारण से बहुत जल्दी वो नष्ट भी होता है, पेरिशेबल पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड। राइट। यहाँ के लोगों ने, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है फूड प्रोसेसिंग की, उन जी जी लोगों ने ये किया कि वो उसको जेली बनाकर, सुखाकर, नेचुरल सनलाइट में सुखाकर उसको पैक करके वो फॉरेन बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते जी हैं। जी हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इसमें कोर्स क्यों नहीं बनाते? जो केमिस्ट्री बीएससी करने वाला लड़का वो मैंगो जेली सीखे, वो एटिकोप्पा का बोम्मोलो बनाने की कला सीखे, ये बोब्बिली वीणा बनाने की कला सीखे। जिससे फायदा ये होगा, वो बीएससी केमिस्ट्री उनको वो खाना देगा या नहीं देगा, लेकिन बोब्बिली वीणा बनाने की जो कला है वो हमको खाना देगी। बिल्कुल। अब ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या इसके पहले ये सारे प्रोविजंस हैं। हम जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स है रिस्क लेना नहीं चाहते। अभी कंफर्ट हमको रिस्क कंफर्ट लेना जोन में होगा, रहते हैं, कंफर्ट जोन। हमको रिस्क लेना होगा। एक शिक्षक, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, जी केवल एमए हिंदी करने से बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जी ट्रांसलेशन स्किल एंड एमए हिंदी करने से बच्चों को फायदा होगा। जी नौकरी नहीं मिलेगी या नहीं तो ट्रांसलेशन असाइनमेंट्स मिलेंगी, हिंदी ऑफिसर बनेंगे, ट्रांसलेटर बनेंगे। ये जो मतलब एक एक सब्जेक्ट के, एक विषय के, एक किताब के, एक इश्यू के इतने सारे चांसेस हैं, इतने सारे हम नॉलेज शेयरिंग हम कर सकते हैं। कभी हमने नहीं सोचा था हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरुओं को, हमारे टीचर्स को अभी मल्टी डायमेंशनल टीचर्स बनने की जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश है, यहाँ हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हमारे आसपास की जो विद्या है, लोकल टैलेंट, लोकल विद्या है, लोकल हुनर है, लोकल हुनर है, इसको हमारी विद्या में, हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारी क्लासरूम में, हमारी लैब्स में हमको लाना है। हर बच्चे को, अब देखिए कुम्हार, यहाँ के कुम्हार बहुत फेमस हैं। जी जी मैं वो एक कुम्हार के पास ही एक दिन बिताया, उनसे पूछा आपको ये कौन आकर इसको ले जाएंगे? उन्होंने कहा सर आप बैठिए, बाद में मैं बताता हूँ। सब लोग चले गए,
उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे घर में खाना खाइए, लंच जी, करिए। मैंने जी। कहा कि मैं लंच करूंगा। अपने ड्राइवर को, अपने साथियों को हमने, आप जाओ, मैं इनके साथ गप करूं। तब वो उनके साथ उनकी झोपड़ी में रोटी खाते खाते उन्होंने मुझे बताया, मेरा यहाँ 10% बिजनेस भारत में है, 90% बिजनेस मेरा फ्रांस के साथ है। क्या बात है, वेरी नाइस। और उनको राइट। तेलुगु छोड़कर कोई भाषा नहीं आती। जी, वो डॉलर्स में, यूरो में कमाता है फ्रांस के साथ। उन्होंने कहा, साहब, इसलिए कि यूरोप के लोगों को, फ्रांस के लोगों को मालूम हुआ है, जी, स्टील के प्लेट में खाने से कोई फायदा नहीं है। जी, 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 बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन है, उसमें उसमें खाना पकाना, उसमें खाना खाने से हमको जी, जमीन के अच्छे गुण मिल जाते हैं, हमारी सेहत तंदुरुस्त होती है, नो साइड इफेक्ट। जी, जी। हम्म। एक कुम्हार कह रहा है, मैं कहता जी, हूं, एनईपी कहता है जी, कि ये जो पॉटरी कला है, हम सबको सिखानी है। जी, पॉटर का बेटा पॉटर पॉटर बने या न बने, जी, मेरा बेटा कुम्हार बनना चाहिए, जी, आपका बेटा कुम्हार बनना चाहिए, पंडित जी का बेटा कुम्हार बनना चाहिए। मतलब एक तरह से एनईपी 2020 हमारे देश को सेक्युलर राष्ट्र बनाने की तरफ विद्या देने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक एंसिलरी क्वेश्चन है इसी के साथ। हम ये मानसिकता जो सोशल स्टिग्मा है, हाँ। जो स्किलिंग को लेके और द काइंड ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन, ठीक है ना, ऐसे लोगों को हम ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। तो इस मानसिकता को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आप थोड़ा सा उस पे अगर कुछ कर ये सके। मानसिकता को बदलना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि जी, किसान को किसानी करनी है, कुम्हार को कुम्हार करनी है, ब्लैक स्मिथ को वो ब्लैक स्मिथरी करनी है। जी, वो जमाना खत्म हो गया। जी, ओके, जहां मार्जिन है, जहां लाभ है, जी, जहां बहुत जल्दी, बहुत परिश्रम से पैसा कमाते हैं, वो सब स्किल्स को हम लोग सिखाने लगे। जी, अब जी, आप जानते हैं एमएनसी में काम करने वाले पति पत्नी, जी, वो नौकरी छोड़कर जी, वो फार्मिंग करने लगे। सुना है सर, सुना है, लेके वो आ। फार्मिंग करने लगे हैं, उनको मालूम हुआ जी, करोड़ों में हम कमाएंगे और करोड़ों में हम डॉक्टरों को पैसा देना पड़ेगा जी, 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 बहुत अपनी सही रीढ़ कहा। की हड्डी को ठीक करने के लिए, हमारी जी, जी, मानसिकता को ठीक करने के लिए। जी, अच्छा खाना, करोड़ों रुपया हमको मिल सकता है, लेकिन हम्म, अच्छा खाना हमको नहीं मिल रहा है। जी, तो वो लोग समझे हम्म, हमको, चलो हम जमीन को वापस जाएंगे। जी, ये ये इट इज ओनली पॉसिबल, right, जब हम शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताए हाँ, कि हाँ, शिक्षा में सब कुछ है, और ये शिक्षा में कोई भी शिक्षा पा सकते हैं। जी, राइट, मैं किसान भी नहीं, कहाँ की किसानी, जी, जी, किसान कर्मी कुली था मेरा पिताजी, मेरी माँ। हम्म, मैं प्रोफेसर बन गया जी, जी, केवल हाँ, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के बलबूते पर। जी, जी, आपने एक 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 ही इसमें आपने मुझे वो सारी यादें दिला दी जो आंध्रा के हम बचपन में एंजॉय करते थे। जो आपने एटी कोप्पा का इनके बारे में चॉइस बताया, की बात की। या बोबिली वीना की बात की, या जो मैंगो जेली हम बहुत चाव से खाते थे, उसकी याद दिला दी आपने। और पॉटरी और इन चीजों को लेके अब आप आपको मतलब धन्यवाद इस बात का है कि आपने वो सारा रिवाइव कर दिया एकदम से। नहीं, सर आगे बढ़। जी, ये जी, सब रेड्डी साहब, जी, ये सब मैं यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक में लाऊंगा, क्योंकि एनईपी ने मुझे ये ये बहुत, अधिकार दिया है। ये बहुत थैंक्स टू जरूरी अवर है। ऑनरेबल पीएम। राइट वो सर। वो स्किल इंडिया की बात करते हैं। जी, 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 हमारी प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे शिक्षा मंत्री है। राइट सर, वो आपने केवल बहुत कि उनके बहुत भाषण सुनकर हमको चुप नहीं होना है, बिल्कुल उनके भाषण को इम्प्लीमेंट करने वाले योद्धा सर, आप और हम हैं। he has enthused many a people like us, sir, and he is a yogi in himself.
आपने एक अच्छी बात कही है, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि मॉडर्न नॉलेज को हमें एंशिएंट नॉलेज के साथ लिंक करना है, तभी जाके हम जो पुराने हमारा वी हैव टू रिविजिट आवर लोकल ट्रेडर्स एंड अंडरस्टैंड द स्किलिंग दैट दे हैड, एंड उस चीजों को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आई थिंक दैट इज द राइट डायरेक्शन फॉर एनी यूनिवर्सिटी। इट शुड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स अराउंड इट and then understand that they need to be again revisited। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक आप इस चीज को बहुत आगे ले जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। अगला प्रश्न ये है सर, हाउ डू यू सी टीचिंग इन मदर टंग particularly in primary education up to 6th standard is going to help in a big way? And two, do you think there is a need to use local mother tongue even in courses that are being run in university for teaching? यस, ये मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। जी, हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं विषय को न समझने के कारण से, ना समझे के कारण हर चीज को हम सामान्य लोग जिस भाषा को नहीं जानते उस भाषा में बोला जाता है, समझाया जाता है। जी, फॉर एग्जाम्पल, हमारे कोर्ट की भाषा हिंदी होनी चाहिए, जी, न्यायालय की भाषा हिंदी होनी चाहिए। हम्म, हमारे बाबू लोग जो अपने ऑफिस चलाते हैं उसमें हिंदी होनी चाहिए, या कर्नाटक में है तो कन्नड़ में होनी चाहिए, तेलुगु आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु होनी चाहिए, ताकि भाषा लोगों को समझाने के लिए है जी, या नौकरों को समझाने के लिए है। जी, नौकरों को समझाने के लिए नहीं, बिल्कुल। लोगों को समझाने के लिए है। जी, भाषा शिक्षकों के सहूलियत के लिए नहीं है, हमारे जैसे प्रोफेसरों को हमको सैलरी देने के लिए भाषा नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए हमको सैलरी मिलती है। जी, बच्चा जिस भाषा में वो समझते हैं, स्पेशली टेंडर एज में, जी, वो जिस भाषा में बच्चे कंफर्टेबल है, जिस लेवल में वो कंफर्टेबल है, उस लेवल में हमको जाना पड़ेगा। तमिलनाडु में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कंप्यूटर कंपनी के मालिक जो पहले अन्य देश में थे, वो तमिलनाडु के रूरल एरिया में आकर अपना वर्ल्ड सेंटर खोला है। जी, वो हफ्ते में एक दिन स्कूल जाकर जो मल्टी डॉलर ओनर का एक आदमी साइकिल लेकर वो बच्चों को वो अपनी वो तमिल में सिखाते। जी, और उन्होंने एक बात कही है, बच्चों को एज के हिसाब से ग्रेडिंग नहीं बनाना है। जी, 6 एट द एज ऑफ 6 वो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, एट द एज ऑफ 7 सेकंड स्टैंडर्ड है, नहीं बनाना है। उनकी समझदारी की स्टेज के अनुसार उनको ग्रेडिंग बनाना। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये मैं कहता हूं, मैंने वो पढ़कर मैंने कहा इस आदमी ने NP 2020 पढ़कर किया है, लेकिन मैंने देखा है वो 5 वर्ष पहले किया है। हो सकता है उनसे प्रेरित होकर NEP में हमने ये सब जोड़ दिया। मातृभाषा में शिक्षा हम देंगे 6th स्टैंडर्ड तक, हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी। जी, हम सक्सेसफुल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, भाषा नीति को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करेंगे, हम आशा कर सकते हैं हमको नोबेल प्राइज मिलेगा। जी, वेरी नाइस। अदरवाइज हम कोका कोला के CEO बना सकते हैं, गूगल के CEO भारत तैयार कर सकता है, लेकिन एक नोबेल प्राइज लाने वाला साइंटिस्ट हम बना नहीं सकते। जी, मेरे बनाना है मेरी मातृभाषा में उनको शिक्षा दे। मेरी बदनसीबी ये है कि बचपन से मैं इंग्लिश मीडियम माध्यम से पढ़ाई की थी। मेरे कुछ ऐसे तेलुगु फ्रेंड्स हैं, वो जब बात करते हैं तो मैं बहुत सारे मिस्टेक्स पकड़ते तो कहते हैं
आप ऐसे कैसे बात करते हो? कहते देखो हम सोचते तेलुगु में हैं, उसको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं. So the basically our thought process is much refined when we speak and think in our own mother tongue. I think that is very very important to be understood. तो आप एक और इस चीज से जुड़ी हुई बात आपसे पूछूंगा, क्या हम जैसे मातृभाषा की बात करते हैं उसके साथ साथ जब पढ़ाई कराते हैं तो ये मॉरल्स, वैल्यूज और हमारी विलेजेस के बारे में यानी हमारी नेबरहुड के बारे में, हमारे आर्ट्स के बारे में, हमारा हेरिटेज के बारे में, आपको लगता है कि ये लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई या सिखाया जाए तो अच्छा है? जरूर, जी अदरवाइज हम इंग्लिश में इंडिया ही बोलेंगे, जी. अच्छा. हिंदी में भारत बोलेंगे, हाँ जी. कन्नड़ में भारत बोलेंगे, तेलुगु में भारत बोलेंगे। जी जी. इंडिया में और भारत में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ तो है. गांव और विलेज बोलेंगे, बहुत बड़ा फर्क है। जी मेरा जी गांव, जी किसी ने, अब मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं ना, जी जी. वो गंवार है, हाँ हाँ किसी ने कहा कि ये गाली है, मैंने कहा जी. कि ये गाली नहीं है, हाँ हाँ ये अफर्मेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम है। वो जी गांव के हैं, आप बोल रहे हैं, हमको जी. गर्व करना चाहिए। बिल्कुल गर्व करना चाहिए. आप मुझे बोलेंगे कट्टी मैंने गंवार है, मैं जी कहूंगा मुझे गर्व फख्र करना चाहिए। जी सूट बूट पहनने के बाद भी आप मुझे गंवारू समझते हैं, जी तो देश की असलियत को मैं छोड़ा नहीं, जी जी मैं असली भारतीय हूँ। जी. ये बात आपने तो धीरे धीरे मुझे गंवार बना दिया क्योंकि मैं अंग्रेजी में ज्यादा बोलता हूँ. सर आखिर में एक सवाल है सर, बहुत सुलझी हुई है लेकिन आप अपना राय दे सकते हैं, बता सकते हैं. हम मॉडर्निटी की ओर काफी आगे बढ़ चुके हैं, कुछ चीजों को हम छोड़ नहीं सकते, टेक्नोलॉजी हो जो भी है, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि वी हैव अ ट्रेजर ट्रोव इन द फॉर्म ऑफ आवर वेदास, उपनिषद्स, and we have a lot of knowledge that is there which has been explored by the west. क्या हम इस चीजों को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते? क्या हम संस्कृत जो कि इन इन चीजों को जुड़ी हुई है, क्या इस चीज को एक फोर फ्रंट पे नहीं ला सकते? क्या हम इस चीज को एक नेशनलिस्टिक व्यू नहीं ले सकते कि संस्कृत शुड बी वन बीइंग द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, शुड इट नॉट बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ? not only the country, it is Right. the oldest language of the world. So then in that light I think my question is much more valid. आप इस पे कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? ये आपके यूनिवर्सिटी में हो या वैसे भी हो, कैसे धीरे धीरे हम सारे भाषा लोगों को, प्रांतों को इकट्ठा करें, एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, एक राष्ट्रभाषा की तरफ जाएं? आप पे इसका विचार क्या है? आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मेरा अपना एक अनुभव बता दूंगा। जी 8 दिन पहले मैं बेंगलुरु में था। जी मुझे साहित्य परिषद, जो 150 इयर्स ओल्ड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, एक पुरस्कार दिया, वो लेने गया था। वो 4 बजे तक था। जी तब मैं सुबह गया था, तो वहां के संस्कृत यूनिवर्सिटी गया मैं, बेंगलुरु में। वहां एक लेडी को मैं जानता हूँ, वो पाली पर काम कर रही है। अच्छा, पाली पे, ओके. पाली पर काम कर रही है, वो संस्कृत विदुषी है। जी 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 उनके पास, उनके टीम के साथ 2 घंटे बिताए मैंने। पाली, प्राकृत, संस्कृत के तीनों भाषाओं के विद्वानों के साथ, विदुषियों के साथ बैठा। जी मैंने उन लोगों से कहा, आई एम वाइस चांसलर ऑफ ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जी ट्राइबल लैंग्वेजेस पर मुझे काम करना है, आप मुझे मेरी मदद करिए। जी अब सवाल उठता है कि संस्कृत और ट्राइबल लैंग्वेजेस का क्या संबंध है? जी पाली और ट्राइबल लैंग्वेजेस का क्या संबंध है? प्राकृत और ट्राइबल लैंग्वेजेस का क्या संबंध है? जी वास्तव में पहाड़ी भाषाएं जितनी भी भारत में हैं, जी उन सब का संबंध संस्कृत के साथ है, जी पाली के साथ है, प्राकृत के साथ है। जी. हाँ है, प्रकृति वो तो मूल भाषा है. जी जी तो हम, क्या हुआ डॉक्टर साहब, जी हम अपनी जड़ों को भूल गए। हमारी विद्या ने हमारी जड़ों को भुला दिया। बिल्कुल. Yes. हम केवल पेरिफेरल, ऊपरी सतह पर तैरते रहे। हमको ना मोती मिला ना हीरे मिले। सुपरफिशियल नॉलेज. तो हमको जड़ में जाना है। जी जड़ में जाना है, संस्कृत सीखना, संस्कृत को जानना, संस्कृत का उपयोग करना,
संस्कृत को अपनाना हमारे लिए जरूरी है। जी जी यदि कोई कहेंगे संस्कृत किसी और की जी जी कि कुछ लोगों की संपत्ति है, मैं जी कहता हूं ये गलत है। ये भारत की संपत्ति है, जी हमारे देश की संपत्ति है। जी तो मैं जाकर इस संपत्ति को, ये गंगा मैया है, आप जितना भी पानी पी लो वो कम नहीं होगी। जी संस्कृत गंगा मैया है, जी आप जितना ज्यादा डुबकी लगाओगे हम्म, उतना हमको मिलेगा। ये रत्नगर्भा वसुंधरा है। बात सही कहा आपने, यदि रत्नगर्भा हम वसुंधरा। संस्कृत से दूर होकर हम कहेंगे कि हम महान, मैं महान बनूंगा, इट जी इज माई लिमिटेशन, ये मेरी मूर्खता है। जी जी मेरी भलाई ये इसमें है हम्म, कि संस्कृत में एवरीथिंग इज रेडी, यू एक्सेप्ट इट, आप प्रयोग करो, आप अपनाओ, उसमें उसको आप एक्सटेंड करते जाओ, अन्य जी भाषाओं में एक्सटेंड करते जाओ, अन्य शास्त्रों में एक्सटेंड करते जाओ। जी एग्रीकल्चर को लेकर संस्कृत में जो इतना सुंदर, इतना सटीक लिखा गया है, जी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो संस्कृत में लिखा गया है, जी वो अद्भुत है। जी हम ये समझते हैं कि संस्कृत में केवल मंत्र हैं, हम हम्म, समझते हैं कि संस्कृत में केवल शास्त्र है, जी केवल कानून है, अलंकार है। वो भी है, हम्म, संस्कृत में हम्म, कृषि है, जी है गाय की देखभाल कैसी करनी है, भैंस की देखभाल कैसी करनी है, गाय के दूध के क्या गुण है, भैंस के दूध के क्या गुण है, जी ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। हम्म, गंगा मैया कहां कहां से बहती है, कहां कहां उनके गुण बदल जाते हैं, गुणधर्म बदल जाते हैं, यह संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ है। जी बहुत सिंपल, हमको डिकोड करना है, राइट। बहुत कष्ट नहीं करना है, डिकोड करना है, उसको उपयोग करना है। जैसे भगवत गीता के बारे में भी बोलते हैं, इट इज लाइक ए मैनेजमेंट काइंड ऑफ बुकलेट वेयर एवरीबडी कैन गेट आंसर्स टू देयर प्रॉब्लम्स। वेरी वेल सेड। एग्जैक्टली yes एग्जैक्टली। yes और वो भगवत गीता जी वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के लिए मैनेजमेंट है, बिल्कुल है। हाँ हाँ और हम जैसे शिक्षक के लिए जी वो शिक्षा का भगवत गीता है। जी 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 ये मल्टी शिक्षक कैसा होना चाहिए, मल्टी धर्म डायमेंशन। निरपेक्ष होकर काम करना चाहिए। जी जी शिष्य को, हर हर शिष्य को कैसे समान देखना चाहिए, हम्म, और जी मैं दे रहा हूं कभी नहीं बोलना चाहिए, देने वाले को ही है, मैं कारण हूं। जी ये जी भगवत गीता का पाठ। जी सर, आपने बहुत सारा समय दिया, इतना ऊर्जा के साथ आप बोलते हो, तो वो हमें को एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही है। You talked about right education. You talked about how one should be need versus greed. May we should always choose need rather than greed. This will help in conserving all our natural resources, is what you have been trying to say, and better utilization of resources. It only happens when you understand need and not greed. But the जी current साहब, education, आपको ये एक चंद मिनट के लिए रुकूंगा। ये जो ग्रीड की बात कही ना, जी ये हमारे धर्म ग्रंथों में अपरिग्रह अपरिग्रह की बात की गई। जी अपरिग्रह हिंदू धर्म ग्रंथों में है, जी जैन धर्म ग्रंथों में है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में अपरिग्रह ही अपरिग्रह है। जी बिल्कुल है। तो अपरिग्रह अभी भी किसी भारत के किसी लोगों में अभी भी जीवंत है। तो जी आप कृपया जंगलों में, जंगलों के आसपास जाकर जी ट्राइब्स में इसको देख सकते जी हैं। आगे बढ़िए। और आपने कहा है स्किलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बट skilling the local talent and bringing out the best in them, I think is a wonderful idea you've thrown at us. I think every university in this country should think about their local things first and then reach to the global level. पहले अपने इर्द गिर्द में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी है, अपनी माध्यम से उन चीजों को सुलझाने का, उनको उभारने का, वहां के लोगों को शिक्षा देने का, I think is a wonderful idea, and every city, every university in this country should adopt to the model, and the idea that you are throwing at is a wonderful thing.
और एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि हमारे अपने हीरोज के बारे में जानना जरूरी है, हमारे प्रकृति के बारे में, हमारे इर्द गिर्द में जो भी है उनको जानना जरूरी है. And education through nature is the best format, and I think education policy is also throwing a light on this, and I think this is how we're going to do. Modern knowledge को हम खारिज नहीं कर सकते, but it has to be linked to our ancient knowledge, is very well thrown by you to this, and probably have made me to revisit all my local things that I have enjoyed in my childhood. Probably with times we forgot about everything because times have changed and modernity has come into play. And very well said, sir. Sanskrit can be our treasure trove, which we need to expand across all schools and colleges. And probably the research should be focused more towards our treasure trove, digging out the best in that research areas. And we will definitely find more solutions than what we are trying to find from the West. I think a wonderful session, sir. I'm enlightened with this. I think on behalf of National Education Mission and then my NEP, I thank you for being with us and thank you for enlightening बहुत us in धन्यवाद. this point. Okay. Thank you very much, sir. Thank you प्रणाम. for your time. Namaskar. जय हिंद, जय भारत. Jai Hind, sir. Jai Bharat. Thank you, sir. नमस्कार.